اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 238 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ کل کی مجلس میں ہم نے جو پڑھا اس میں واضح طور پر طلاق کے ہی تین جو مختلف مواقع یا تین سچویشنز جو ہیں ان کا ذکر ہوا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ مطلقہ بیوہ جو ہے، اگر کوئی خاوند جو ہے وہ فوت ہو جائے تو اس صورت میں عورت کے لیے 4 مہینے اور 10 دن تک روکنا ہے اپنے آپ کو، یعنی 4 مہینے اور 10 دن کی عدت ہے بیوہ کے لیے، 4 مہینے اور 10 دن، اور اس دوران وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سوگ کی حالت میں رکھیں گی۔ اس کے بعد جب وہ اس عدت کے پیریڈ سے نکل جائیں تو ان کے جو ولی ہیں یا ان کے جو رسپانسیبل جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیسا کہ عورت چاہے، اس کی خواہش یا اس کے مشورے کے مطابق، اس کے مشورے سے معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے جو بھی وہ فیصلہ کرے اپنے بارے میں اس پر ضرور اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں سے واقف ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ذکر ہوا، اس کے علاوہ یہ بھی ذکر تھا کہ اگر عدت کے دوران، یعنی عدت بیوہ کے لیے، بیوہ کی عدت یا طلاق یافتہ عورت کے لیے تیسری طلاق کے بعد کی جو عدت ہے، اس دوران میں بھی اگر کوئی دوسرا شخص ان سے نکاح کی رغبت رکھتا ہے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں ان تک واضح کر سکتا ہے، لیکن معروف طریقے سے، چھپ چھپا کر نہیں، یا بیک ڈور سے نہیں، یا کسی غلط یا غیر معروف یا برا نظر آنے والا کوئی بھی طریقہ جو ہے اس طرح سے وہ جائز نہیں۔ کسی وہ جو عورت ہے اس کے کسی محرم رشتے کی وساست سے یا کسی بھی طرح سے بھلے انداز سے ان کو صرف وہ انڈیکیشن دے سکتا ہے، لیکن اس عدت کے دوران نکاح کرنا بالکل بھی غلط ہے، اور نہ ہی نکاح کے لیے اتنا زیادہ تردد کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس کے لیے اتنی زیادہ کاوش، کیونکہ وہ نکاح جو ہے وہ تو جائز ہی ہمیشہ صرف عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ تو ایک سچویشن تھی۔ دوسری سچویشن تھی کہ اگر طلاق ہو جائے ایسی صورت میں کہ نہ تو رشتہ ازدواج جو ہے یعنی رخصتی نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کا حق مہر جو ہے وہ ادا کیا گیا، یا نہ حق مہر مقرر کیا گیا، نہ ہی حق مہر مقرر ہوا، نہ ہی رخصتی ہوئی، تو اس صورت میں جو مرد ہے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے دلا دے اسے، عورت کو، اگر اس نے اس کو طلاق دی ہے تو اس کے لیے فرض نہیں یا لازم نہیں کہ اس کو بہت بڑی اماؤنٹ یا کوئی مقرر، کیونکہ مہر مقرر نہیں تھا، تو اس لیے وہ اپنی مرضی اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی خوشحالی کے مطابق وہ جو بھی ممکن ہو سکے وہ اس طلاق یافتہ عورت جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دے، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا دے۔ اور تیسری صورت جو ہم نے دیکھی تھی وہ اس صورت میں طلاق ہے جب رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، چاہے ادا کر دیا یا نہیں، لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا، حق مہر، تو اس صورت میں مرد کو چاہیے کہ وہ آدھا مہر جو ہے وہ اس کو دے دے، اور اگر تو مہر ادا کر دیا ہوا تو آدھا مہر جو اس کا تقاضا کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی بھلا طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ سارے کا سارا معاف کر دے، یا دوسری طرف
औरत जो है वो भी अगर ज़्यादा हसन और ज़्यादा अफजलियत चाहती है तो वो उसमें से कुछ हिस्सा माफ़ कर दे या पूरे का पूरा ही उसको लौटा दे या अपना जो हक है उसको छोड़ दे, तो ये दोनों के लिए इसमें कोई गुनाह नहीं और दोनों के लिए एक दूसरे पर एहसान और एक दूसरे से फजीलत हासिल करना ये भी ऐन मकसूद हो सकता है। तो ये 3 सिचुएशंस कल हमने देखी थी। अब इन 3 सिचुएशंस में और इससे पहले भी जब से तलाक का मामला या तलाक के मौजू पे आयात आ रही हैं, तो उसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला बार-बार कह रहा है कि किसी के साथ ज़्यादती ना होने पाए, कि किसी के साथ कोई ज़ुल्म, कोई जबर नहीं और बार-बार इस चीज़ की ताकीद है कि अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो, हदों से नहीं गुज़रना। अल्लाह ताला ने जो आयात और निशानियाँ और हिकमत के साथ सारा कुछ वाज़ेह बयान कर दिया, उनके उनके ऊपर डटे रहो और उनके मुताबिक ही अपने मामले जो हैं वो लेकर चलो। और देखो अल्लाह ताला की जो आयात, अल्लाह ताला की हदायत, रहनुमाइयाँ, ये जो मामलात हैं इनसे रूगर्दानी ना करना और ना ही इनका कोई मजाक बना देना, ना ही इनको मजाक समझकर खिलौने की तरह मतलब इन हदायत और शरीयत की जो रहनुमाइयाँ हैं उनको मतलब मजाक बिल्कुल बनाना नहीं है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। पिछली आयात में हमने देखा बार-बार अल्लाह ताला जो है वो कह रहे हैं कि हसन के अच्छे तरीके से मारूफ तरीके से हसन नीयत के साथ ही आपने जो भी करना है वो करना है, इस्लाह के साथ रुजू करना है तो भी इस्लाह के साथ, अगर इस्लाह नहीं कर सकते, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो सकती तो भले तरीके से उनको रुखसत कर दो, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज्यादती, और खासकर यहाँ पर औरत पर जुल्म और ज्यादती जो है उसका बहुत ध्यान रखा गया है तलाक के मामले में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि तलाक एक ऐसी हलाल चीज है या हलाल हुक्म है जिसको नापसंद किया गया है, जिसको ना करने का ही बेहतर समझा गया है। इसी वजह से बार बार इसको आसान भी किया गया। उसके भी बहुत सारे मामले हैं जो हमने पढ़े और इसके जो हदायत हैं, रहनुमाइयाँ हैं, अहकामात जो हैं उनको भी बहुत वाज़ेह अंदाज में यहाँ पर जिक्र किया गया कुरान में। और कुरान जो है क्योंकि बार बार तलावत होती है और कुरान का तर्जमा भी अक्सर जो है पढ़ा जाता है, तो इसलिए जो ज़्यादा अफजल और ज़्यादा अहम जो अहकामात हैं वो कुरान में जिक्र हैं। अलबत्ता हदीस जो है वो तो इसकी बहुत लंबी और बहुत अच्छी और बहुत फाइनल तशरीह जो है वो करती है। तो जब भी ऐसे मामलात हों तो कुरान से रहनुमाई और हदीस से फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन लेके उसके मुताबिक ही अपने फैसले जो हैं वो उनको अंजाम को जाना चाहिए। तो इस तमहीद का मकसद मेरा ये भी था कि आगे आने वाली 2 आयात जो हैं वो अगरचे इस मौजू से थोड़ी हट के हैं, लेकिन इन आयात में आपको 2 चीज़ों का 2 पहलू जो हैं वो मिलेंगे। 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पिछली आयात जो गुज़री तलाक की उसमें बार-बार अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया कि एक दूसरे के ऊपर जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी किसी भी तौर से, और हसन तरीके से, और ख़ासकर औरतों के लिए कि उनको जब भी रुखसत करो तो भले तरीके से रुखसत करो या भले तरीके से रखो। तो ये तकवा की निशानियाँ हैं। ये जो मोमिन तकवा अख्तियार करता है या अल्लाह ताला से डरता है, उसकी शरीयत के मुताबिक चलना चाहता है, तो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करता, किसी हद के करीब भी नहीं जाता, फलांगना तो दूर की बात, उन उन हदों के करीब भी नहीं जाता। तो यहाँ पर माज़रत, अगली 2 आयत में नमाज का थोड़ा सा तज़किरा है। नमाज के बारे में मजीद जो खुलकर अहकामात आएंगे अगली अगली सूरतों में, अगली आयात में जब भी, तो उस बारे में डिटेल से जिक्र हुआ, क्योंकि यहाँ पर नमाज के बारे में बहुत ही मुख्तसर जिक्र है, इसलिए सिर्फ यहाँ से उस मुख्तसर अंदाज में गुजर जाएंगे हम और इसकी डिटेल बाद में पढ़ेंगे। और जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि ये कुरान की खूबसूरती है कि मौजू के ऊपर बहुत लंबी और बहुत देर तक गुफ्तगू नहीं चलती, थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेता है, कभी रेफरेंसेस आगे पीछे के आते हैं ताकि ध्यान जो है वो भी बढ़ता रहे, बोरियत भी ना हो, और बार बार रिवीजन करने से जो मतलब पिछली जहन में बातें आ जाती हैं बार बार, ये कहने के रिवीजन का अंदाज भी है, दोहराई का अंदाज भी है, जिससे जहन नशीन हो जाती है, अच्छी तरह से चीज़ें बात पक्की तरह से जहन में बैठ जाती हैं। तो बहरहाल
इसी मतलब मौजू के हिसाब से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाफिज़ु अला सलाती, तुम हिफाजत करो नमाजों की, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज की, खासकर दरमियानी नमाज की, वक़ूमू, और सब खड़े हो जाओ, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, कानितीन, अदब व नियाज से, अदब से, कनात के साथ। यहाँ पर ये जिक्र करता चलूं कि जो लोग तकवा अख्तियार करते हैं, हकीकत में तकवा अख्तियार करने वाले, या अल्लाह के ऊपर डरने वाले, या अल्लाह के अहकामात की पासदारी करने वाले, कोशिश करने वाले कि जितना मुमकिन हो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल किया जाए, तो उनमें नमाज सबसे पहला जो अमल हम देखते हैं, जो सबसे वजाहत करता है उसके अमल की, उसकी नीयत की, उसकी कोशिश की, वो नमाज है। नमाज अगर जो नहीं पढ़ता तो उसके बाकी अमाल जो हैं वो उन पे शकूक व शुबात हो सकते हैं। अगरचे ये तो नहीं कि आप अगर नमाज नहीं पढ़ते तो बाकी अमाल भी नहीं करो, नौजुबिल्ला, लेकिन जो सही मानों में अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है, नमाज को सबसे पहले अपनाता है। हमने यहाँ पर अपने माशरों में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात का तो बहुत अच्छी तरह से एहतमाम करते हैं, जो सदका खैरात भी बहुत करते हैं, जो दूसरे दूसरे लोगों के साथ भलाई के मामलात भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज जो है वो तकवा की तरफ एक सबसे पहली सीढ़ी है, और जो इस सीढ़ी पर चढ़ रहा है, यकीनन वो कि हर हाल में बाकी जो मामलात हैं उन पर भी कारमंदी रहने की कोशिश करता है। तो बहरहाल इस नमाज का तल्लक एक तो मैंने जैसे बताया कि पिछली आयात से इसलिए भी है कि जो अल्लाह ताला ने बार बार कहा कि तकवा अख्तियार करो, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती ना होने पाए, और हसन तरीके से एक दूसरे के साथ मामलात निपटाओ। तो नमाज जो कायम रखता है और नमाज के ऊपर जो सही तरीके से अमल करने की कोशिश करता है, तो वो यकीनन ऐसे मामले जो हैं वो उसकी उस उनको अहमियत देता है। वो उसको अगर एक दफा पता चल गया कि अल्लाह ताला ने ये कहा है, तो वो यकीनन उसको पकड़ के रखेगा। और दूसरा, आगे आने वाली आयत, यानी कल तलाक का ये मौजू इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो आयत आएंगी वो जिहाद के जिहाद के रिलेटेड होगी, जंग के रिलेटेड या किताल के रिलेटेड, किताल फी सबीलिल्लाह के रिलेटेड। तो उसमें उस दौरान में नमाज को तर्क करना वो किसी भी सूरत जायज नहीं, या किसी भी सूरत उसकी इजाजत नहीं। यहाँ तक कि अगर जंग की हालत में है तो उस सूरत में भी किसी न किसी तरीके से आपको नमाज अदा करनी ही है। और इस भी तफसील इंशाल्लाह जरूर आएगी नमाजों के चैप्टर में, नमाजों के जो आयात हैं उनमें। लेकिन नमाज को किसी भी सूरत में छोड़ना वो उसकी कहीं कहीं भी इजाजत नहीं। हाँ, नमाज को किसी दूसरे अंदाज में पढ़ लेना, या नमाज को थोड़ा ताखीर करके पढ़ लेना किसी शरई मजबूरी से, वहां तक मुमकिन है, लेकिन नमाज को बिल्कुल छोड़ देना ये कहीं भी इसकी इजाजत नहीं। खैर, इन दो आयात की सेंटर में आने की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो होगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपनी नमाजों की हिफाजत करो, यानी अपनी नमाजों का एहतमाम करो, खुशी व खुजू के साथ, इंतहाई दिल जमई के साथ, बहुत अच्छी नीयत के साथ उनको अहसन वक्त पर, सही वक्त पर पढ़ना है, और पूरी की पूरी अदा करनी है, जितनी तुम उनकी हिफाजत कर सकते हो, अपनी नीयत के हिसाब से, अपने ज़ाहरी अमाल के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से, जो जो भी मामलात और जो जो भी अरकान है उन सब में नमाज की हिफाजत करने का कहा गया। और खासकर दरमियानी नमाज, जो नमाज असर है, दरमियानी नमाज को नमाज असर होने में भी कुछ इख्तलाफात हैं, मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ कौल हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस की रोशनी में असर की नमाज को नमाज वस्ती यानी दरमियानी नमाज जो है ना, सलातुल वुस्ता कहा गया है। तो बहरहाल असर की नमाज की एक ख़ास अहमियत है, वो भी हम इंशाल्लाह नमाज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नमाज खासकर जो दरमियानी नमाज, और उसके अलावा दरमियानी नमाज या सलातुल वुस्ता का एक दूसरा मानी ये भी हो सकता है कि बहुत हसन तरीके से, बहुत ही अहतमाम के साथ और ज़्यादा शिद्दत से उसको मतलब शिद्दत दी गई है उसके अहतमाम करने में, उसमें खुशी व खुजू लाने में, उसमें ठहराव लाने में, उसमें पुरसकून होकर नमाज पढ़ने में। ठीक है, तो इसका एक मतलब ये भी है कि उसकी अहमियत ज्यादा की है, नमाज को और ज्यादा अहमियत दे के अदा करना है। तो ये दोनों मानों इससे निकल सकते हैं।
वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के सामने तुम अदब और न्याज से, आजिज़ी के साथ, बहुत ही अदब के साथ अल्लाह के सामने खड़े होना है जब भी नमाज के लिए खड़े होना है अल्लाह के सामने। आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 239। फ़ाइन, बस अगर खिफ्तुम, तुम हालत खौफ में हो, तुम्हें किसी किस्म का कोई डर हो, कोई खौफ हो, फरिजालन, तो पैदल, और रुकबानन, या सवार। ये नमाज के बारे में है कि अगर तुम्हें किसी दुश्मन का या किसी इलाके का या किसी चोर उचक्के का रास्ते में मुसाफिर हैं अगर, तो उस सूरत में या कहीं भी अगर कोई खौफ है, तो यहाँ तक कि उस सूरत में भी नमाज को छोड़ना नहीं, और बेहतर ये है कि उसको उसके वक्त में या नमाज के वक्त के दरमियान ही उसको पढ़ा जाए। और उस सूरत में अगर तुम्हें पैदल चलते हुए या सवारी में किसी ऊंट पर या खच्चर पर या गाड़ी में कहीं पर भी सवार हैं, उस सवारी के दौरान भी अगर नमाज पड़ जाए तो उस सूरत में भी पढ़ लो, लेकिन देखो नमाज को छोड़ना नहीं, और नमाज को कोशिश करनी है कि ताखीर भी नहीं करनी। ठीक है। खैर, इसके मज़ीद तफसीलात जो हैं वो बहुत बाद में आएंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे सवाल उभरेंगे यहाँ पर कि नमाज कसर जो है वो भी है, नमाज जमा जो है जमा करके नमाज पढ़ जाती है वो भी है। बहरहाल नमाज के चैप्टर्स में ये बहुत ही तफसील से जिक्र होगा। यहाँ पर ये है कि नमाज, यह चीज़ की अहमियत है कि नमाज को छोड़ना किसी सूरत नहीं, और जहाँ तक मुमकिन हो नमाज को नमाज के वक्त के दरमियान उसको पढ़ लेना है, किसी भी हालत में हो। और अगर खौफ का आलम हो, चाहे वो जंग का खौफ है, चाहे वो किसी मूजी जानवर का यहाँ से आने जाने का, चाहे रास्ते का खौफ है, किसी भी किस्म का खौफ है, यहाँ पर खौफ की किस्म नहीं बताई गई, उसको ओपन छोड़ दिया गया ताकि आसानी रहे रहनुमाई में, हदायत में। तो किसी किस्म का अगर खौफ है तो फिर भी तुमने नमाज पढ़नी है, चाहे पैदल हो या चाहे सवारी के दरमियान सफर के दौरान। फाइजा, पस जब अमीन तुम अमन में आ जाओ, यानी उस हालत से निकल जाओ, आराम में आ जाओ, वो खौफ दूर हो जाए, तो उस तब क्या करना है, फस्कुरुल्लाह, तो तुम जिक्र करो अल्लाह का, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, उसकी आयात, उसकी निशानियां जो हैं, अल्लाह ताला के एहसानात जो हैं उनका जिक्र करो और उनका शुक्र अदा करो। कमा अल्लामकुम, जैसे उसने सिखाया, मालम, जैसे उसने सिखाया तुम्हें, जैसे उसने, अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया। बहुत सारी आयात में हमें बहुत कुछ मालूम हो रहा है, और आगे आने वाली आयात से भी हमें बहुत कुछ इल्म मिलेगा। तो जो जो कुछ हम सीख रहे हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला का शुक्र, उसकी हम्द व सना वो बयान करो। मालम, जो नहीं, तकून तालमून, तुम जानते थे, अल्लाह ताला ने तुमको वो सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। आगे अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। वापस पहला मौजू जो है उसकी तरफ ही लुटाई गई ये आयत। फिर वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना, और वो लोग जिनको फौत कर दिया जाए, या वो लोग जो फौत हो जाएं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना, और छोड़ जाएं, अज़वाजन, बीवियां। ये दोबारा से अज़वाज का जिक्र हो गया, जो बेवा है, बेवाओं का, कि अगर तुम लोगों में से कोई फौत कर दिया जाए या फौत हो जाए, वो लोग जो फौत हो जाए और वो पीछे बीवियां छोड़ जाएं, बेवा छोड़ जाएं, वसीयत कर जाएं, यानी वो जो मरने वाले हैं वो वसीयत कर दें, अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के हक में, अपनी बीवियों के लिए, मताअन, किसी फायदे का, मालो मता का, किसी नानो नफ़के का, उनके गुजर बसर के लिए, उनके उनके रोजमर्रा के मामूलात के चलाने के लिए, कोई फायदा पहुंचाने के लिए कोई वसीयत कर जाओ, इलल हाउली, 1 साल तक, 1 साल की मुद्दत के लिए, गैर इखराजिन, और घर से ना निकाला जाए, घर से ना निकाला जाए, यानी 1 साल की मुद्दत तक के लिए उनको उनके रहने बहने का, उनके मालो मता का, उनके नानो नफका की वसीयत कर जाओ, और उनको घर से भी ना निकाला जाए। फाइन, फिर अगर खर्च ना, खुद चली जाए, यानी इद्दत खत्म होने के बाद, 1 साल खत्म होने से पहले अगर वो खुद चली जाए, कोई निकाह के इरादे से, या वापस आप अपने वालिदैन के घर, या जैसे भी भले तरीके से वो खुद चली जाए, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, यानी जो वारिस हैं उनके उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं, फीमा, जो इसमें है, फ़अलना, जो उन्होंने किया, यानी वो जो औरतें हैं जो वो अमल करेंगी, उस पर, उसके अमल का तुम पर कोई गुनाह नहीं। फी अनफुसिहिन्ना, अपनी जात के बारे में, मारूफिन, अच्छे तरीके से, वो औरतें जो हैं अगर वो अच्छे तरीके से वो उस पर जो भी अमल करेंगी उसका
तुम पर कोई गुनाह नहीं, यानी वारिसों पर कोई गुनाह नहीं कि वो इद्दत के बाद अगर जाना भी चाहें, किसी दूसरी जगह निकाह करना चाहें, वालिदैन के पास वापस जाना चाहें या जो भी फैसला करें, तो उस बारे में रोकना, ज़ोर ज़बरदस्ती करना ज़रूरी नहीं, और उसके ऊपर पिछले जो हैं उनको कोई गुनाह नहीं। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह जो है वो गालिब हिकमत वाला है। अब इस आयत के ज़िम्न में मैं बता चलूँ कि ये जो आयत है, ये वरासत के जो कवानीन जो अल्लाह ताला ने बयान किए कुरान में, और बाद में इसकी तशरीह भी मिले हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से, वो उनसे पहले थी। और जैसा पहले भी बार बार जिक्र हुआ कि बहुत सारे मामलात में अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं वो थोड़े थोड़े बतदरीज दिए हैं, ताकि जो उस वक्त का जो मुआशरा है जिसमें वो इतनी खून में खून की यानी रगों में खून की तरह दौड़ रहे थे, इस तरह के मामलात, और बहुत सारे मामलात जो है उन पर अचानक से मतलब शिद्दत के साथ अमल करना जो है ये भी बहुत मुश्किल था। तो बहुत सारे, जैसे कि नमाज के बारे में भी है, जिसके अलावा खासकर ज़कात के बारे में, और सबसे ज़्यादा अहम शराब के बारे में, वो जो अहकामात हैं वो बतदरीज आए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से उनको नाफिज किया गया, और फिर एक वक्त आया कि उसको स्टैंप लगा के नाफिज कर दिया गया। तो ये आयत जो है ये उससे पहले की है, जब औरतों को बिल्कुल भी कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था जायदाद में, और उनको बिल्कुल एक एक चीज ही समझा जाता था नौज बिल्ला, और उनकी बिल्कुल नाकदरी की जाती थी, जुल्म और ज्यादती किया जाता था। और उनको अक्सर ये भी हमने रवायात से या पिछली उम्मतों से मिलता है कि जैसे ही तलाक होती थी या जैसे ही वो फोत होते थे खावन, तो उनको घरों से निकाल देते थे या उनके साथ जुल्म और ज्यादती शुरू हो जाती थी। और आज के माशरे में भी अगर हम तनकीदी तौर पर देखें तो कुछ मामलात ऐसे मिल जाते हैं कि बेवा औरतों के साथ कुछ ज्यादतियां हो जाती हैं, की भी जाती हैं, हो जाती हैं, या जिस तरह से भी। बहरहाल ये अहम है हमारे लिए जानना कि इसके बाद वरासत के कवानीन जब आए तो वरासत के मुताबिक औरत का जो हक है वो उसको पूरे का पूरा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कि उन उस वक्त के हालात के मुताबिक थोड़ी सी उनको उनके जो जहन है उनको उनमें कुछ बातें बिठाने के लिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि औरतों का भी हक है, वरासत में भी हक है, और औरतों का चाहे वो तलाक याफ्ता है या उनके अपने हकूक हैं, जो बेवा हैं उनके अपने हकूक हैं, और उनके हकूक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर है कि अगर बीवियां छोड़कर मर जाओ, अगर कोई बेवा हो जाए, तो उसके वारिस जो है उसको घर से निकाल ही ना दें, बल्कि जो मरने वाला है उसको चाहिए कि कुछ इस तरह से इंतजाम जो भी मुमकिन हो कि 1 साल के लिए उनके लिए खाने पीने का और उनके लिए रहने बहने का किसी किस्म का उनको फिक्रमंद होने की जरूरत ना हो, इस तरह के अरेंजमेंट रहने चाहिए। बहरहाल अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है कि क्या हिकमत है इन मामलों में, और बहुत सारी हिकमतें तो अल्लाह ताला की खुलकर वाज़ेह हो जाती हैं जब हमें कुछ मामलात जो हैं उनसे निपटना पड़ता है। और अक्सर जो है उन अहकामात पे अमल करना या कैसा है, उनमें क्या हिकमत है, वो हमें बहुत बाद में जाके पता चलती है। बहरहाल तो उस सूरत में जो अगर वो साल से पहले 1 साल से पहले अगर वो दूसरा निकाह करना चाहें या छोड़कर घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहें किसी महरम के साथ में, तो उस सूरत में भी मतलब जो पीछे उसके वारिस हैं उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं कि उसका साथ दें वो, और उसकी मदद करें वो इस मामले में। वल्लाहु अजीजुन हकीम, और अल्लाह जो है वो तो गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला इन सब हिकमतों को अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा बेहतर जानता है। तो हमें सिर्फ सब्र के साथ उसकी हिकमत जो है उसके हुक्म जो है उन पर अमल करके उसकी हिकमत जो है उसके वाज़े होने तक हमें सब्र करना है। वलिल मुतल्लक़ाति, और तलाक याफ्ता औरतों को भी मता उन कुछ फायदा दे दो, कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाए, बिल मारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक या हसन तरीके से, मारूफ तरीके से, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, हक है परहेज़गारों पर। अब पहले जैसे ज़िक्र हुआ कि नमाज के कुछ आयात बीच में आ गई जो परहेज़गारों का एक बहुत ही अच्छा वतीरा है, तो परहेज़गारों पर ये लाजिम है, या जो परहेज़गार हैं जो अल्लाह की हदायत पर अमल करना चाहते हैं, जो अपने आप को मोमिन कहते हैं और मोमिन होने का दावा करते हैं, उनका ये हक है, उनके ऊपर ये हक है, उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो और तलाक याफ्ता औरतों को या औरतों को तलाक देने के बाद कुछ ना कुछ फ़ायदा दे दें भले तरीके से। अब एक तो ये है कि औरतों का कुछ हक बनता है, जैसे आधा हक में उसका बनता है अगर वो रुखसती के बाद हक में मुकर्रर
रुखसती नहीं हुई, लेकिन हक मार मुकर्रर हो चुका, जैसा कि कल हमने पढ़ा। या दूसरी औरतें जो जो तलाक बाइन जो हो गई, जिनको 3 तलाक हो गई, तो उनकी इद्दत के बाद जो भी उनका हक बनता है हक में, या जो भी उनका हक है, उस हक जब ना सिर्फ उनको वो हक दे दो, बल्कि उनको कुछ फायदा पहुंचा दो। जो हक है, जो मेरा हक है, वो तो हक है, फायदा तो मुझे वो है जो मुझे उस हक से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उनको कुछ ना कुछ हक जो है वो पहुंचाना, उनको हक देना, ये जो परहेजगार लोग हैं उनके ऊपर लाजिम है, ये उनके ऊपर हक है। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला साफ साफ बयान करता है, युबय्यिनु बयन करता है, वाज़े तौर पर बयान कर देता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती ही, अपने अहकामात को, अपनी निशानियों को, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझ बूझ से काम लो, ताकि तुम अकल से काम लो, ताकि तुम जो कुछ जान चुके हो उनको समझ के हर चीज को, हर पहलू सबको परख कर उसके मुताबिक अपने फैसले, अपने मामलात जो हैं उनमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तलाक का जो चैप्टर है वो वो जो है वह ख़त्म को पहुंचा है। उसके बाद सूरह निसा में और सूरह माइदा में भी कुछ तफसीलें आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जितना हमने तफसील से इस तलाक के मौजू को डिस्कस किया, आइंदा आने वाली आयात जो है वो बड़ी आसानी से और बहुत कम वक्त में हम इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब इसके बाद आने वाला जो आयात है उसमें मौजू जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है, अगरचे वो भी एक लंबा ही मौजू चलेगा, वो जिहाद और किताल के बारे में है। तो पहली आयत जो है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं आज, ताकि उसके बाद अगली आने वाली आयत जो है वो भी हम आसानी से देख सकें। तो आगे जो, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि किताल और जिहाद के बारे में जिक्र होने वाला है, तो पहली जो 2 आयत हैं इस ज़िमन में, आयत नंबर 243 243 और 244, ये कह लें कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ एक समरी है, या एक एक प्लानिंग कह लो, कि जहन को तैयार किया जा रहा है उस वक़्त के सहाबा, उस वक़्त के जो अवामुन नास हैं, उस वक़्त के जो ईमान लाए, जो मोमिन हैं, उनके लिए। ज़ाहिर है, मतलब ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो तैयार हो ही जाता है, ज़हनी तौर पर तैयार होना जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको नीयत को अच्छा करने में, नीयत को मजबूत करने में, इरादों को मजबूत करने में, अपने आप को मतलब ताकतवर बनाने के लिए, जब तक आपका जहन उस अमल की तरफ माइल ना हो, उसकी अफादियत जो है वो उतनी नहीं होती। और उसमें अगर कोई परेशानियां लाहिक हो तो उस सूरत में इंसान जो है वो जल्दी कमजोर हो जाता है। तो दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर तैयार करने के लिए उम्मत को कुछ इंट्रोडक्शन या कुछ मतलब समरी जो है वो बयान की अल्लाह ताला ने। और उस सिलसिले में जैसा कि हमें पता है कि अल्लाह ताला जो है वो कुरान में पिछली उम्मतों को भी बयान करता है, उनके वाक़यात को, ताकि उनको मिसाल बनाकर उनके सामने पेश किया जाए कि ये उनका अमल था, उसके मुताबिक उनको ये नतीजा हासिल हुआ। तो बहरहाल कोशिश करते हैं पहली आयत को देखने की आज इंशाल्लाह। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, खराजू, जो सब निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम, और इस हालत में थे वो, उलूफुन, हजारों में थे, हज़र अल मौत, मौत के डर से। फ़काला, तो कहा, लाहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने उनसे, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा, मूतू, तुम सब मर जाओ। सुम्मा, फिर, अहयाहुम, जिंदा किया उन्हें जिंदा किया। इन्नल्लाह, बेशक लदू फजलिन, यकीनन फजल करने वाला है, अलन नासी, लोगों पर, वलाकिन्न, और लेकिन अक्सर अन्नासी, अक्सर लोग, ला यशकुरून, नहीं शुक्र करते। अब ये आयत जो है इसका तर्जुमा मैं एक दफा फिर पढ़ देता हूँ। क्या आपने नहीं देखा उन लोगों को जो अपने घरों से हजारों की तादाद में निकले, जो अपने घरों से हजारों की तादाद में निकले मौत के डर से। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों से हजारों की तादाद में निकले? तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मर जाओ, यानी अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी। सुम्मा अहयाहुम, फिर उनको जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला जो है वो फजल करने वाला है लोगों पर। अल्लाह ताला लोगों पर फजल करता है हमेशा, लेकिन अक्सर लोग जो है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते।
اب اس آیت کی بہت ساری تفاسیر ہیں اور بہت سارے واقعات جو ہیں اس آیت کے ضمن میں کوٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کوئی صحیح احادیث کی روشنی میں یا اس کی بیک گراؤنڈ میں کوئی صحیح روایت جو ہے نا، کوئی ٹھوس روایت وہ نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود کچھ جو تفاسیر ہیں یا کچھ صحابہ کرام کی جو کوٹ ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کے جو روایات ہیں، ان سے اخذ کر کے عام طور پہ دو جو ہیں دو روایتیں یا دو سٹوریز جو ہیں ان کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے، ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ تھوڑی سی کم ریلیونٹ ہے، دوسری زیادہ ریلیونٹ ہے، تو انشاءاللہ 2-3 منٹ میں انتہائی مختصر الفاظ میں کیونکہ وہ انتہائی ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، تو پہلا واقعہ جو تھوڑا سا نسبتاً غیر اہم ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں، یعنی اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں اسلام سے پہلے کی، ان میں ایک کوئی قوم یا ایک کوئی بستی بہت بڑی ایسی تھی جہاں پر طاعون کا مرض پھیل گیا۔ جب طاعون کا مرض پھیل گیا تو جیسے کہ ہمیں آج بھی حدیث مبارکہ سے حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں پر بھی پینڈیمک یا ایپیڈیمک ہو، جہاں پر بھی کوئی وبائی امراض پھوٹ پڑے تو نہ ہی اس مرض کے علاقے میں نہ ہی جاؤ اور نہ ہی وہاں سے باہر نکلو، ٹھیک ہے، اور اگر جو اس مرض میں اس علاقے میں جو گرے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہیں پہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں اور اگر وہاں سے وہ باہر نہیں نکلتے اور اگر ان کو اس بیماری کی وجہ سے موت آ جاتی ہے تو ان کو شہید کے برابر درجہ دیا جائے گا۔ تو یہ احکام جو ہے پہلی امتوں پر بھی تھا، جو کہ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں اپنی بستی کو طاعون کے مرض سے ڈر کے، اپنی موت کے خوف سے وہ نکلے، تو اللہ کے حکم سے نہ کر روح گردانی کرتے ہوئے جب نکلے اور دوسری کسی بستی میں جا کر آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت وارد کر دی، اور یہ یعنی کہ بتانے کے لیے کہ تم موت کے ڈر سے وہاں پر نکلے ہو کسی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے، تو تمہیں موت تو یہاں پر بھی آ سکتی ہے، تو ان سب کو مار دیا گیا، سب کو موت دے دی گئی۔ پھر کسی نبی کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس بستی کو جب اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ان نبی کی دعا سے وہ دوبارہ ان کو زندگی دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے، یہ تھوڑا سا نسبتاً غیر اہم ہے کیونکہ اگلے آنے والی آیات سے ریلیٹڈ ایک اور ہے واقعہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں، وہ میں مختصر الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں آپ کو پتا ہے کہ وہ فرعون سے نجات اور اس طرح سے کیسے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو کیسے کیسے ٹھکرایا، اور بہت سارے معاملات میں وہ تکذیب کرتے تھے اور بار بار روگردانی کرتے تھے اللہ کے احکامات کی، یہ تو بہت پڑھ چکے ہم پچھلی آیات میں بھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ مصر میں یا فلسطین میں مختلف قبیلے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں آباد ہوتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ اتحاد کر کے یہ کبھی بھی نہیں رہے تھے پہلی دور میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل میں مختلف جگہوں پر وہ آباد تھے اور آپس میں بھی ان کی تھوڑی جھڑپ ہوتی رہتی تھی اور اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ تو باہر کی قوم جو ہے، دوسرے جو امپائرز ہیں، رومن امپائرز ہیں شاید، دوسرے جو امپائرز ہیں انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، ون بائی ون کر کے ان کو کمزور کرتے وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کو وہاں سے فلسطین کی سرزمین سے یا مصر کی سرزمین سے ان کو نکال دیا اور وہ صحرائے سینا میں آباد ہونے پر مجبور ہو گئے۔ جب وہ صحرائے سینا میں آباد ہونے پر مجبور ہو گئے تو وہاں پر تقریباً 40 سال تک وہ اسی حالت میں رہے، صحرا کی حالت میں ہی رہے، اور اس 40 سال کے دوران ان کے جو حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے بعد جو تھے حضرت ہارون اور جالوت، ان کی بھی وفات ہو گئی، اس کی تفصیل آگے آنے والی آیات میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو ان کی بھی وفات ہو گئی اور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ جو پچھلے جو قبیلوں سے ریلیٹڈ تھا، جو آپس میں اتفاق نہیں کرتے تھے اور جو عمر کو گزر چکے تھے، زیادہ تر ان لوگوں کی بھی وفات ہو گئی، اور وہی ان حالات میں ہی ایک نئی نسل جو ہے پیدا ہوئی اور پروان چڑھی اور بڑھی، اور وہ 40 سال جو عرصہ ہے، اس 40 سال کے دوران میں پہلی جو ایک جنریشن تھی وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مرتے چلے گئے اور نئی جنریشن جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نئی جنریشن نے پھر اس وقت کے نبی سے تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار مقرر کریں،
ہم جہاد کریں گے اور ہم قتال کریں گے اپنی زمین کو واپس لینے کے لیے. پھر انہوں نے متحد ہو کر دوبارہ سے ایک فوج تیار کی ایک نئی نسل نے, اور پھر واپس انہوں نے فلسطین پر اور مصر کی جو سرزمین ہے ان پر واپس حملہ کیا, اور پھر وہ واپس اس پر قابض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی. تو اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپس میں اتحاد نہیں تھا ان کا, اور کمزور تھے, اور ان کمزوری کی وجہ سے وہ غالب آ گئے, دوسری قومیں ان پر غالب آ گئی, اور دوسری طرف وہ مجبور ہو گئے صحرا میں بھٹکنے کے لیے. اور اسی صورت میں وہ پوری جو ایک جنریشن تھی وہ مر گئی, وہ مر کھپ گئی, اور اس کے جگہ پر ایک دوسری جنریشن جو ہے ان کی اگلی نسل جو ہے وہ پیدا ہوئی, جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ غلبہ عطا کیا اور فتح نصیب کی. تو موتو یا احیاہم جو ہے اس کا یہ ہے کہ ایک جنریشن پوری وہ فوت ہو گئی, اور دوسری جنریشن جو ہے وہ اس کے اوپر آ گئی, جس نے پھر دوبارہ اللہ کے حکم کے مطابق مطلب اپنے اعمال جو ہے وہ انجام دیے. تو اتنا سا مختصر سا ذکر ہے, حالانکہ مطلب کم از کم بہت لمبا واقعہ بیان ہو سکتا ہے. تو وقت بھی ختم ہو گیا, تقریباً 2 منٹ رہ گئے ہیں, تو انشاءاللہ باقی کل دیکھیں گے اگلی آیات سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ دیکھ لیں, یا کل یہ فہد افضال وہ بات کرنے لگے تھے شروع, لیکن بات مس ہو گئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری امی جان ہے. جی امی جی. اچھا بیٹا, میں یہ پوچھنا تھا, ایک مطلب عورت ہے, اس نے کورٹ میرج کی تھی, جی اس نے مطلب 2 سال اپنے خاوند کے ساتھ رہی ہے, کوئی میاں بیوی والا ویسا تعلق نہیں تھا. اب اس کو نا طلاق ہو گئی ہے, وہ پھر چاہتی ہے میں اس سے پھر شادی کروں. اچھا, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ دیکھیں ان کے اصل لیکن اس لڑکے نے ہاں بیٹا اس لڑکے دے ماں باپ ہے نا, وہ اس نو تسلیم ہی نہیں کرتے. اچھا, تو پھر پتہ نہیں کیوں چول کہن رہی ہے میں پھر نکاح کرنا. یہ ایکچولی سب سے پہلے جو کورٹ میرج ہے نا, وہ کورٹ میرج شرعی طور پر کورٹ میرج جائز نہیں ہے, کیونکہ عورت کا پہلا نکاح جو ہے ہی پہلی نہیں. دفعہ بغیر ولی کی اجازت کے وہ نکاح ہی مطلب نہیں. ہمارے افسوس کے ساتھ کہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ اتنے شرعیت کے قریب سے بہت سارے معاملات میں نہیں ہیں, اور دوسرے معاملات میں یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اگر وہ طلاق ہوئی ہے تو وہ ایک دفعہ طلاق کی ہے, رجوع کیا ہے, دوسری دفعہ ہوئی ہے, تیسری دفعہ وہ طلاق کا چیپٹر ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے, اور پہلی طلاق کے اس بعد نے عدت ختم ایک ہوگی تو دفعہ دوبارہ تینوں نکاح باری ہے. لے کے بھیج دیتا ہے. اب یہ ایک اختلاف کا باری معاملہ نہ ہے, انہیں اس میں 3 میرے دفعہ لیے تھوڑا سا 3 مشکل باری ہے. کہہ کے بھیج دیتا ہے. نہیں, وہ تھوڑا سا مشکل اس لیے کہ یہ اختلاف والا معاملہ ہے, اور اس میں بہت اختلاف ہے, اس لیے میں اس میں رائے دینا جو ہے مناسب نہیں سمجھتا. اس میں اچھا. علماء میں بہت اختلاف ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مفتی سے رابطہ کریں, کیونکہ اس ضمن میں نا میں یہاں پر اختلاف پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے اس مقصد کے لیے. تو اتحاد جو ہے